Hi friends, in a fresh session we'll start with hybridization. लास्ट सेशन के अंदर हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग चेक कर लिया था एंड लिटिल बिट डिस्कशन चेक किया था व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय हाइब्रिडाइजेशन. आज के सेशन के अंदर हमें 5 हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है. इन आवर सिलेबस वी हैव SP, SP2, SP3, SP3D and SP3D2 hybridizations are there in our syllabus. So without wasting much time, let's start with a SP hybridization. Now once again, SP hybridization का मतलब क्या होगा? One s orbital and one p orbital overlap with each other and gives you the new sets of orbital or hybrid orbital are known as SP hybridization. So without wasting much time, let's start with the SP hybridization. SP hybridization का best example available है BeH2 और you can write it down BeCl2, beryllium hydride, beryllium chloride. So center element और center atom कौन सा है? Beryllium. Atomic number of beryllium Z is equal to 4. GS का मतलब in ground state. GS means ground state. So beryllium electronic configuration is 1s2, 2s2. Now in excited state, where Z is equal to 4, one of this outer electron of 2s jump and goes to next orbital available, that is called as 2p. In excited state of beryllium, one of this electron from 2s jump from 2s and go to the next available orbital is 2p. So 1s2 is nothing but inner shell. Inner shell can be write as a helium core. So helium core 2s1, 2p1. Now box representation discussion करते हैं. Helium core 2s and 2p. 2s means one simple box, 2p means 3 simple box, px, py and pz. जो ब्लैक एरो बताया हुआ है वो है बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन, जस्ट बिकॉज 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन. अपोजिट टू दैट रेड से जो बताए हुए दैट इज हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और एल्स आप यहाँ पे क्लोरीन भी लिख सकते हो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली व्हाट हैपन, हाइड्रोजन इज टेकिंग पार्ट विद s ऑर्बिटल आल्सो एंड p ऑर्बिटल आल्सो एंड ड्यू टू दिस यू हैव sp hybridization. 1 2s and 1 2p overlap with each other and you get the new hybrid orbital is known as sp hybridization. फिगर ड्रॉ कीजिएगा BeHH. अगर कोई BeCl2 का एग्जांपल ले रहा तो मैंने स्लैश करके Cl लिखा हुआ है, आप दोनों मत लिखिएगा, कोई भी एक लिखिएगा, आइदर BeHH और आइदर BeCl. मीन्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आइदर BeCl और आइदर BeH2. देन शेप इज 180 डिग्री एंड शेप हो जाएगा आपका लीनियर. एंगल बिटवीन BeH is 180 डिग्री and shape हो जाएगा linear. So this is the first hybridization, that is sp hybridization. Example is BeH2 or BeCl2. Next we move on to this sp2 hybridization. Second sp2 hybridization. sp2 hybridization के लिए example मेरे पास है BeCl3, BH3. Center element है boron, Z is equal to 5. GS का मतलब in ground state. Electronic configuration of boron in ground state is 1s2, 2s2, 2p1. Now in excited state, once again one of this 2s electron jump from 2s to 2p. Perfect. Once again one of the 2s electron jump from 2s to 2p. So boron is in an excited state. Helium core 1s2 is inner shell, that is helium core 2s1, 2p2. Now we'll represent the box diagram. This is nothing but helium core, box diagram 2s and 2p. जो once again black जो represent किए हुए हैं वो center element that is boron के है, and this is your Cl, Cl, Cl. So basically 1s and 2p is taking part with this hybridization, that's why that is called sp2 hybridization. sp2 1s and 2p are participate in hybridization or bond formation, that is sp2 hybridization.
फिगर कैसी होगी, BClCl, इट्स लुक लाइक अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर सेंटर एंड दिस आर द 3 विंग्स ऑफ फैन. सो BClClCl एंगल हो जाएगा 120 डिग्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रायंगुलर. So this is all about your second example, sp2 hybridization, BCl3 plus BH3. Once again my mistake, sp2 hybridization, example is BCl3 BH3, angle हो जाएगा 120 डिग्री, shape हो जाएगा triangular planar. Next we moved on to this sp3 hybridization. नेक्स्ट वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर हमें 3 एग्जाम्पल डिस्कशन करने हैं. CH4 NH3 H2O, दैट इज मीथेन, अमोनिया एंड वाटर. फर्स्ट वी स्टार्ट विद CH4. सेम ट्रेडिशन से आगे बढ़ेंगे. सेंटर एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2. ग्राउंड स्टेट Z is equal to 6. In excited state, one of the electron of 2p goes to another direction. नहीं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन शायद आपको अराइज होगा, सर आउटर इलेक्ट्रॉन तो 2p है, तो 2p का इलेक्ट्रॉन क्यों जंप नहीं कर रहा है? बट 2p का इलेक्ट्रॉन जंप करके भी p में ही जाएगा, s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p में आएगा. सो दैट्स व्हाई कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, हीलियम कोर 2s1 2p3. वंस अगेन बॉक्स डायग्राम, दिस इज हीलियम कोर. 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2p1 2p1 2p1, सभी के अंदर 1 1 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये बेसिकली ब्लैक जो थे वो सारे के सारे किसके हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन. अपोजिट टू दैट 1 1 1 1, 4 हाइड्रोजन, बिकॉज CH4 है. कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के सामने 4 वैकेंट पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे. एंड ड्यू टू दिस 1s and 3p orbital are taking part in the bonding, and due to this sp3 hybridization takes place. शेप क्या हो जाएगा? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ CH4. स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल TD. बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 109-28 मिनट. तो sp3 hybridization, CH4 your example, shape is tetrahedral and bond angle is 109-28 minute. Now we moved on to the second sp3 का example, ammonia. Second example, NH3. Center element is N, Z is equal to 7, 1s2 2s2 2p3. Now here in case नाइट्रोजन के साथ 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, मीन्स 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. Now we have a p3. सो 2s को एक्साइट होके p में जाने की कोई जरूरत है नहीं. सो इसीलिए इन एक्साइटेड स्टेट वी हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम कोर 2s2 2p3. नाउ बॉक्स डायग्राम, हीलियम कोर 2s2, दोनों के दोनों ब्लैक है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ही 2 इलेक्ट्रॉन है. 2p3 1 2 3, जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन, एंड अपोजिट टू दैट वी हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉर हाइड्रोजन. And we have sp3 hybridization. Now तुरंत क्वेश्चन होगा, सर अब तक तो सर sb बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा था, pb बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा था. यहाँ पे तो only and only p is participating. So why don't its hybridization is p3 and instead of p3 आपने तो यहाँ पे sp3 लिखा हुआ है. So here in case this is not taking part in a bond formation but included into this hybridization, that electron is known as lone pair of electron or non-bonding pair of electron. याद कीजिए VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theorem. Just because of this non-bonding pair of electron, NH3 जो है वो टेट्राहाइड्रल ना होते हुए ट्राइगोनल पिरामिडल है, वो हमने प्रूफ किया था. एंड वही चीज हम यहाँ पे शो करने वाले हैं इन पिक्चोरल डायग्राम. दिस इज योर अमोनिया. नाइट्रोजन HNH, एंगल है 107, एंड दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले लोन पेयर्स जो नाइट्रोजन के सर पे है. एंड ड्यू टू दिस, though it is sp3 hybridization,
उसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ना होते हुए है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड एंगल जो 109-28 मिनट होना चाहिए था उसकी वजह से श्रिंक होके हो गया 107. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन केस ऑफ अमोनिया. Third example under sp3 hybridization, H2O. Center element is oxygen. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. In excited state, same electronic configuration, helium core, 2s2, 2p4. Now we moved on to this box diagram, helium core. ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के इसी ब्लैक से डिनोट किया हुआ है, एंड 2p4, 1, 2, 3 and 4. Here in case 2 vacant orbital are there and वहीं पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया. So this and this both are entitled as a lone pairs of electron. तो lone pairs of electron का मतलब जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं but included into this hybridization. Though only 2p are participating in bond formation, hybridization is sp3 hybridization just because of this two non-bonding pair of electron. फिगर हो जाएगा OH एंगल हो जाएगा 104-5 मिनट्स एंड टू नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए. दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंगल 109-28 से कम होकर कितना हो गया है 104-5 मिनट. शेप टेट्राहेड्रल होने की जगह पे क्या हो गया है बैंड शेप, और यू कैन से दैट वी शेप दिख रहा है उल्टा. दिस इज ऑल अबाउट योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ 2 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा sp3 कंपैरिजन भी कर सकते हैं. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन. sp3 के अंदर 3 एग्जाम्पल पढ़े हमने. कौन कौन से पढ़े? CH4, अमोनिया एंड H2O. सबसे पहले तीनों की फिगर चेक कर लीजिए. हियर इन केस देयर इज नो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. हियर इन केस 3 बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हियर इन केस 2 बॉन्डिंग एंड 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बस यही सारी चीज हमें कंपैरिजन में लिखनी है. व्हाट इज देयर इन कंपैरिजन? कंपैरिजन में क्या क्या चीज है? तो कंपैरिजन में ये सारी चीज है हमारे पास. सबसे पहले बॉन्डेड, और कितनी बॉन्डिंग है? तो 4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. हियर इन केस 3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन. हियर इन केस 2 बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन. नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 0 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसीलिए ये शेप देखिए टेट्राहेड्रल है इसका स्टैंडर्ड, बट ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, और ये हो गया बैंड शेप और वी शेप. एंगल भी डिफर होने लगा. डिफर एंगल, स्टैंडर्ड एंगल कितना है 109-28 मिनट, ये हो गया 107, एंड दिस इज 104-5 मिनट्स. तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद अ सूटेबल ऑल एग्जाम्पल. और एल्स उल्टा करके पूछ सकते हैं, H2O, अमोनिया एंड मीथेन all are sp3 hybridized, then after symmetry and bond angle are different, discuss with the hybridization. तो ये सारी चीज आपको दिखानी है, कंपैरिजन करना है, एंड देन यू गेट 4 out of 4 मार्क्स. अब 2 हाइब्रिडाइजेशन बाकी है, sp3d and sp3d2. So on 4th position we have sp3d hybridization. sp3d hybridization का मतलब 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital overlap with each other and you get the new sets of orbital, that is called sp3d hybridization. Example is PCl5. Central element P where Z is equal to 15, that is in ground state. मैंने जानबूझ के पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो नियॉन कोर 3s2 3p3, बट आई स्टार्ट विद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. सो इन एक्साइटेड स्टेट नियॉन कोर 3s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे चला जाएगा d1 में. अब एक और क्वेश्चन अराइज होगा, सर s में से जंप करके p में क्यों नहीं गया?
तो P में जाएगा तो P4 हो जाएगा। अगर P4 हो गया तो वी रिक्वायर्ड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब जाके 5 क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकेंड रीजन P3 क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज मोर स्टेबल एंड ड्यू टू दिस S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा कहां पे जाएगा, D में। सो 3S में एक इलेक्ट्रॉन, 3P में 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3D में 1। देखिए ब्लैक वाले 5, जो अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसी जगह पे 5 क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एंड वी गेट S 3P एंड 1D sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके P में नहीं जाता है और सीधा D में जाता है, जस्ट बिकॉज वी रिक्वायर्ड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रीजन P3 is half filled is extra stability, due to this S में से सीधा कहां पे चला जाएगा, D में। नेक्स्ट पिक्चोरल डायग्राम चेक कर लीजिए। PCl5 का पिक्चोरल डायग्राम क्या हो जाएगा, PCl5 is all about 1P Cl and Cl, they are in plane, so that is planar triangular, and this Cl is above the plane, this Cl is below the plane। above the plane below the plane सिमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। 120 कहाँ पे, ये प्लेन में देखिए, इट्स लुक लाइक अ फैन लाइक स्ट्रक्चर, और ये अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन की वजह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल यहाँ पे मिलेंगे, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। सिमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल इज PCl5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। लास्ट, that is sp3d2 hybridization. Now in case of sp3d2 hybridization, example is SF6. Now sp3d2 1s 3p and 2d सारे चीज ओवरलैप होके क्या बनाएगा, sp3d2। सल्फर वेयर z इज इक्वल टू 16। वंस अगेन स्टार्टिंग से लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। नाउ दिस इज नथिंग बट नियॉन कोर इन एक्साइटेड स्टेट। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P, दोनों जंप करके कहां पे चले जाएंगे, D में। अब सिंपल सी बात है, D2 है तो D2 में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। रीजन नंबर 2, D में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। P4 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगी तो P में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे और D में 2, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे एंड वी हैव 6 फ्लोरीन टू अकोमोडेट इट। नियॉन हैज इट इज 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, D में 2 1 एंड 2, F and F। 6 single electron and 6 fluorine are introduced into this. So 1s, 3p and 2d are participating in it, and due to this sp3d2 hybridizations are formed. So sp3d2 hybridization example क्या डिस्कस किया हमने, SF6। SF6 के अंदर शेप हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रॉन SFFFF। This is square planar structure. This is above the plane fluorine, this is below the plane fluorine। स्ट्रक्चर की सिमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रॉन। एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। So this is all about your sp3d2 hybridization। Example is SF6। बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, सिमेट्री होगी ऑक्टाहाइड्रॉन, एंड दिस इज द फिगर। So this is all about your huge session, hybridization। In this session we'll discuss sp का एग्जाम्पल था BeH2 और BeCl2। then sp2 एग्जाम्पल इज BH3 BCl3। मोस्ट इंपॉर्टेंट sp3, 3 एग्जाम्पल CH4, अमोनिया एंड वाटर। फोर्थ पोजीशन पे देखा sp3d, एग्जाम्पल इज PCl5, एंड लास्ट sp3d2, एग्जाम्पल इज SF6। So this is all about from my side. Thank you.